તો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ ગૌરાંગ કરંટ અફેરમાં. આજે છે 14 જાન્યુઆરી અને મકર સંક્રાંતિ. તો પહેલાં હેપી મકર સંક્રાંતિ બધા ભાઈઓને. અને આજનું કરંટ અફેર આપણે જોશું. શરૂઆત કરીએ મિત્રો. ભારતીય સેનાએ તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં શાન શક્તિ કવાયતનું આયોજન કર્યું છે? જવાબ આવશે મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્ર વિશે જાણીએ તો તેનું કેપિટલ છે મુંબઈ, એના સીએમ છે દેવેન્દ્ર અને ગવર્નર છે આચાર્ય દેવવ્રત. ડીઆરડીઓએ મહારાષ્ટ્રમાં સ્વદેશી ટોપ અટેક સક્ષમ MPAGM નું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. અદાણી ગ્રુપે પુણેમાં શરદચંદ્ર પાવર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ AI નો પ્રારંભ કર્યો. મહારાષ્ટ્રમાં ભારતનો સૌથી પ્રાચીન ગોળાકાર પથ્થર બુલબુલે મળી આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં એક સમર્પિત કિસ્મિસ સંશોધન કેન્દ્ર સ્થાપવામાં આવશે. વૈશ્વિક બેન્કિંગ જાયન્ટ JP મોર્ગન મુંબઈમાં એશિયાનું સૌથી મોટું ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર સ્થાપશે. મહારાષ્ટ્રમાં મહાક્રાઇમ OS AI લોન્ચ થયું. તાજેતરમાં અમેરિકાએ કયા દેશ સાથે વેપાર કરતા દેશો પર 25% ડ્યુટી લાદી છે? એટલે કે ડ્યુટી એટલે ટેક્સ વધાર્યો છે. તેનો જવાબ આવશે ઈરાન. ઈરાન વિશે થોડું જોઈએ તો ત્યાંનું કેપિટલ છે તેહરાન, કરન્સી છે ઈરાન રિયલ અને પ્રેસિડેન્ટ છે મોસદિક પેઝેકિસ્તાન. તાજેતરમાં બ્રિક્સ BRICS 2026 સમિટનું આયોજન કોણ કરશે? જવાબ આવશે ભારત. તાજેતરમાં અપાર ID બનાવવામાં કયું રાજ્ય મોખરે રહ્યું છે? જવાબ આવશે છત્તીસગઢ. ખેલો ઇન્ડિયા ટ્રાઇબલ ગેમ 2026 છત્તીસગઢમાં યોજાશે. છત્તીસગઢના બસ્તરમાં એક ગામડાના ઉત્સવમાં બાઇસન હોર્ન મરિયા નૃત્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાયપુરમાં શાંતિ શિખર ધ્યાન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ છત્તીસગઢ વિધાનસભામાં નવા ભવનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. છત્તીસગઢમાં કાળિયાર પુનઃ પ્રવેશ યોજના સફળતાપૂર્વક અમલમાં મુકાઈ. છત્તીસગઢનો બાલોદ જિલ્લો ભારતનો પ્રથમ સત્તાવાર રીતે બાળ લગ્ન મુક્ત જિલ્લો બન્યો. છત્તીસગઢના કોરબામાં કોલ ઇન્ડિયાના પ્રથમ સંપૂર્ણ મહિલા સેન્ટર સ્ટોર યુનિટનું ઉદ્ઘાટન થયું. છત્તીસગઢ સરકારે તમામ જિલ્લાઓમાં જેલમાં કેદીઓ માટે યોગ અને સુદર્શન ક્રિયા શરૂ કરી. અલીશા હિલીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તે કયા દેશના હતા? તો ઓસ્ટ્રેલિયા દેશના હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા વિશે જોઈએ તો કેપિટલ છે કેનબેરા, કરન્સી છે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એન્થોની. ઓસ્ટ્રેલિયા 21 ડિસેમ્બરને પ્રતિબંધ દિવસ તરીકે જાહેર કરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 16 વર્ષની ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે વિશ્વનો પ્રથમ સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા વિક્ટોરિયા યુનિવર્સિટી 2026 સુધીમાં ગુરુગ્રામમાં તેનું પ્રથમ ભારતીય કેમ્પસ ખોલશે. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત ઓસ્ટા હિંદ 2025ની ચોથી આવૃત્તિ પર્થમાં શરૂ થઈ. ઓસ્ટ્રેલિયાએ સંરક્ષણ મજબૂત કરવા માટે MQ-28A ગોસ્ટ બેટ ડ્રોન વિકસિત કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી મિશેલ સ્ટાર્કે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. તાજેતરમાં દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં ડ્રગ મુક્ત કેમ્પસ અભિયાનનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? આપણા CM રામકૃષ્ણને કર્યું. અને મારો મિત્ર આજનો સવાલ છે, CP રામકૃષ્ણન કોણ હતા? આપણા ભારતમાં તે કોણ છે? અત્યારે હાલમાં કયા પદ ઉપર છે અને શું તેમનું કાર્ય છે? આ કોમેન્ટ કરો અને જેની કોમેન્ટ સાચી હશે તેને આપણે પિન કરશું. તાજેતરમાં પ્રથમ મેડ ઇન ઇન્ડિયા AI પ્લેટફોર્મ કોણ લોન્ચ કરશે? તો જવાબ આવશે જીઓ. એટલે આપણા મુકેશ અંબાણીની કંપની જે જીઓ છે તે લોન્ચ કરશે. ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है. ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा. तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये मैंने फुल फॉर्म बोली है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है. तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है. अब महाराष्ट्र में किया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के अभी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत. वैसे ये गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन इन पर अभी महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है. क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है.
अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। ये पता है किसने किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट सुनते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज का दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? ये आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। सौर ऊर्जा जैसे ही सुना तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन नंबर 1 पे रहा है? याद है? गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे रहा। अभी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। उनको प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी का हस्त निर्मित घोड़ा उपहार में दिया था। वो जो हस्त निर्मित घोड़ा था ना चांदी का, वो महाराष्ट्र का बना हुआ था, याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी भोर टाइगर रिजर्व है। ये जो मुझे याद है ना जिस फिलों के साथ, उससे फिलों के साथ आपको भी याद होने चाहिए। ये याद हो जाएंगे, ये कोई मिरेकल नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। आप अपने शेड्यूल में इसे शामिल कर लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 25 से 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखो। आपको इतनी जीके जीएस की चीजें याद हो जाएंगी कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया? तो ये केरल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि अरलम तितली अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। अब केरला सुन के कुछ याद आया? नारियल की भूमि कहा जाता है केरला को, लेकिन ध्यान रखना नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। मैप पे देखो, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, केरल रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। ये 72 लिखा देखता हूं ना, 1972, तो तुरंत 1973 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में आता है, और आपके भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, याद रख लेना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अब जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर सुनते हैं ना, तो तुरंत प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लो। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। क्या शुरू की है? स्पाइस रूट पहल। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क है। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है, और सबसे इंपोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल से रिलेटेड एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। क्या बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। और भारत का पहला स्किन बैंक केरल में खुलेगा, और केरल में भी कहाँ खुलेगा? याद है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो, और ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस IIT में
परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये आईआईटी मद्रास में शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की। आईआईटी मुंबई ने सिने SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है। और दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेडॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आईआईटी मद्रास था। तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड, ये तो मैंने आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। अब आंसर क्या था? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो याद आए आपको? मैं आपको एक एक करके याद कराता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की थी। एनसीईआरटी ने एडटेक को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। कृषि अवशिष्ट से पैकिंग सामग्री, जो आप देखते हैं ना पैकिंग सामग्री होती है, तो जो कृषि अपशिष्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे पैकिंग सामग्री आईआईटी मद्रास में डेवलप की गई है। अच्छा, एक रिंग मैंने आपको बताई थी कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट के लिए, रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर ये भी आईआईटी मद्रास ने बनाई। क्या नाम था? YD1। क्या नाम था? YD1। अब मैं आपसे आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। किस आईआईटी ने खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? अभी अपने देश भारत वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आगे एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ये भारत में होगी, फरवरी में होगी। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब जैसे ही लखनऊ सुना तो सबसे पहले क्या माइंड में आएगा कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्या माइंड में आएगा? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हो गया है। तीसरा क्या माइंड में आएगा? ये भारत का दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ है। इससे पहले एक शहर शामिल हो चुका है, वो शहर कौन सा है? हैदराबाद। इतना आपके माइंड में आना ही चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने ग्रहण की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था।